हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? ओके, चलो. The last time we have solved the all examples of chapter number 9. Today we are going to solve numericals from exercise. Just read the question number 1, 9.1. Which one? A steel wire of length 4.7 meter and cross section area 3 into 10 raised to minus 5 meter square stretched by same amount as copper wire of length 3.5 meter and cross section area of 4 into 10 raised to minus 5 meter square given under a given load. What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? That means our interest to calculate the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper. For that, length for the steel wire and copper wire given, their areas are given, and given that they are stretched by same amount. मतलब the increasing in the length of steel wire and copper wire is same, as well as whatever the forces are given that is also same. लिखा हुआ under the given load, मतलब whatever the force exerted this is also same. तो चलो इसको पहले तो हम लिस्ट आउट कर दे. स्टील के लिए अगर हम S लिखें, then length of the steel wire LS is 4.7 meter and cross section area given. Area for the steel it is 3 into 10 raised to minus 5 meter square, and the length for the copper wire 3.5 meter and area for the copper 4 into 10 raised to minus 5 meter square. यहाँ पर लेंथ हमें मतलब whatever the increasing in length सेम दे रखा है and given force also सेम. तो फाइंड करना है हमें रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस फॉर द स्टील टू द कॉपर वायर. तो अगर हम फॉर्मूला यूज कर दें यूजिंग y is equal to FL upon A delta L, then what we can say? Young's modulus is directly proportional to the length and area because force और delta L तो हमें सेम बोल रखा है. It is same for both. तो अगर दोनों में सेम होगा तो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा. That's why we can say as a constant. चलो तब अगर हमें इसका रेशियो करना है कि फॉर स्टील एंड फॉर कॉपर इज, देन वी कैन राइट L फॉर द स्टील एंड एरिया फॉर द स्टील. अब डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब कॉपर के लिए एरिया कॉपर ऊपर और लेंथ कॉपर नीचे होगा. ओके, चलो तब length for the steel 4.7, area of the copper 4 into 10 raised to minus 5, area of the steel 3 into 10 raised to minus 5, and length for the copper is 3.5. Okay, now just calculate the ratio. Then 10 raised to minus 5 cancel out. Only 4.7 into 4 divided by 3 and divided by 3.5. It is 1.79. Then ratio of Young's modulus steel to the copper is 1.79. ऐसा भी बोल सकते हैं Young's modulus of steel is 1.7 times that of the copper. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 2 9.2. 9.2 में हमें कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है.
मतलब ग्राफ दे रखा है, द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। चलो जो भी ऐसे ग्राफ है फॉर द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, नेचर कुछ उसका ऐसा दे रखा है। ओके, एंड आस्क अबाउट द यंग्स मॉड्यूलस फ्रॉम द ग्राफ एज वेल एज approximate yield strength for the material। तो देखो यंग्स मॉड्यूलस मतलब द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए कोई भी पॉइंट पर उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कांस्टेंट रहेगा अप टू द प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन। तो यहां से यहां तक सेम रहेगा। तो उसमें देखो हमें परफेक्ट पॉइंट कौन सा मिल रहा है जिसका हम रेशियो ले सकते। तो एक यहाँ पर कोई एक परफेक्ट पॉइंट मिल रहा है कि जहां पर दोनों की वैल्यू परफेक्ट मिलेगी। यहाँ पर बोल सकते हैं 150, लेकिन नॉट 150, 150 इंटू 10⁶, क्योंकि स्ट्रेस में ये गिवन है 10⁶, एंड द बिलो इट इज 0.002। वहां पर ये हमें परफेक्ट पॉइंट मिल रहा है। क्लियर? देन तो एक के लिए क्या बोल सकते, फ्रॉम ग्राफ यंग्स मॉड्यूलस y is equal to stress upon strain, then stress is 150 10⁶, and strain 0.002. Then take the ratio 150 divided 0.002. It is 75000. Then 75000 into 10⁶ Newton per meter square. Otherwise you can say 7.5 अगर लिखना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 मतलब 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदरवाइज 75 लिखो तो 10⁹ वो तो जो भी आंसर लिखो ये आंसर भी सही होगा। एग्जाम में तुम यहाँ तक लिखो तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, यहाँ पर लिखोगे तो भी। अब जब भी ऐसे आंसर आया उसका यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो वहां पर मार्क्स कट होंगे एग्जाम में। ओके, द यूनिट इज कंपलसरी। बाकी तो कोई भी तुम ऐसे आंसर 75 10⁹ लिखो, 7.5 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज। ओके, चलो देन सेकंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ मतलब इसका मैक्सिमम स्ट्रेस हमें चाहिए। तो यील्ड स्ट्रेंथ मतलब जहां पर ऐसे मैक्सिमम मिलता है वो, तो वो कौन सा है? नियर अबाउट 300 इंटू 10⁶, ऐसा बोल सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदरवाइज 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? चलो नंबर 3 यहां पर ही हो सकता है। 2 graphs are given for material A and for material B। चलो यहां पर ही ग्राफ इसके ड्रॉ करते हैं कि फॉर मटेरियल A कैसा दे रखा है हमें ग्राफ। तो यहां से ऐसा कुछ करके ऐसा दे रखा है फॉर द मटेरियल A। नाउ फॉर द मटेरियल B क्या है? द ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज फॉर B। ओके, क्या पूछा है उसमें? Which of the material has greater Young's modulus? Greater Young's modulus मतलब the greater the ratio. Greater the ratio means greater the slope, that you can say slope also. The greater the slope, greater the ratio
देन इन दोनों में से किसका एस है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के है। तो किसमें हमें रेशियो ज्यादा मिलेगा, स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है। तो जिसका ऐसे जो भी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड हो उसका स्लोप ज्यादा बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए हैज ग्रेटर, ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर मटेरियल ए यंग्स मॉड्यूलस इज ग्रेटर। तो ए के आंसर में तुम्हें लिख देना है कि यंग्स मॉड्यूलस इज ग्रेटर फॉर मटेरियल ए बिकॉज द स्लोप of stress versus strain, stress upon strain is more for material A, ऐसा वर्डिंग में लिख दो। ओके चलो बी क्या है, which of two is stronger material, तो stronger material मतलब जल्दी से टूटे नहीं, इसको हम stronger material बोलेंगे। हाँ तो यहाँ पर ये जो भी है यहाँ से आकर टूटेगा ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर टूट जाएगा। तो बी जो है वो ब्रैक्शन देन ए में ज्यादा है। ओके इसका मतलब जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जल्दी से टूटे नहीं, उसको हम खींच पाए, जितना खींच सकते हो उतना हम खींच पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा खींचे टूट जाए तो वो हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं बोलेंगे। तो बी के आंसर में तुम लिख देना कि the material for which plastic deformation is large is called strong material, then plastic deformation is more for A than B, then A is the stronger material। ओके दोनों आंसर तुम्हें ऐसे लिख देने हैं, और ये भी ऐसे बाकी का जो भी है ऐसे वीडियो पोस्ट करके लिख दो। ओके चलो अब नंबर 4 में कुछ ऐसे कौन सा ऐसे स्टेटमेंट सही है, रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्यों सही है, वो भी हमें बोलना है। ओके चलो देन रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ नंबर 4। क्या है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील, सही है क्या रॉन्ग बोलो। The Young's modulus of rubber is greater than steel, स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो क्यों फॉल्स है, तो यंग्स मॉड्यूलस जो है वो ग्रेटर कब बोलेंगे, तो सोचो व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके अब y की वैल्यू ग्रेटर कब होगी, व्हेनेवर स्ट्रेन इज लेस, द मटेरियल फॉर व्हिच स्ट्रेन इज लेस इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। ओके यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ज्यादा कब होगा, जब स्ट्रेन कम होगा तब। इसका मतलब स्ट्रेन मींस जो हम बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसमें लेंथ ज्यादा इंक्रीज ना हो। ओके स्ट्रेन लेस मींस नो इंक्रीजिंग इन लेंथ। तो रबर में तो तुम जितना खींचो उतना हो सकता है लंबा, तो उसका स्ट्रेन बढ़ जाएगा, जिसका स्ट्रेन ज्यादा है उसका यंग मॉड्यूलस कम होगा। स्टील तो स्टील जो उसको तुम ज्यादा खींच नहीं पाते। ओके तो स्टेटमेंट तो फॉल्स है, लिख देना यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और फिर लिखो सो y इज ग्रेटर फॉर स्मॉलेस्ट स्ट्रेन produced in material। ओके तब बोलेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ
स्टील इज ग्रेटर देन रबर, रबर में तो ज्यादा हो सकता है ये। चलो बी क्या, द शियरिंग of coil is determined by the shear mode stretching of coil is determined by the shear modulus। coil जो है उसमें ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर उसको तुम स्ट्रेच करो तो जितना स्ट्रेच करोगे वो क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक स्पाइरल जैसा हो जाएगा, है ना। तो स्पाइरल हो गया मतलब चेंज इन द शेप, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस वन इज द given statement is true because by stretching the coil there is change in shape of the coil, बराबर, उसमें शेप चेंज आएगा तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि shear modulus। ओके चलो नेक्स्ट नंबर 5। 9.5 में क्या, हमें एक डायग्राम दे रखा है ऐसा कुछ, एंड two different wires are given, one made up of steel, another made up of brass। okay, इसकी लेंथ 1.5 मीटर और इसकी लेंथ 1 मीटर। end of the steel 4 kg weight is applied, under the brass 6 kg mass is hanged। अब यहाँ पर जो ब्रास है तो ब्रास के लिए पहले यंग मॉड्यूलस हमें लेना पड़ेगा। अब ब्रास के लिए यंग्स मॉड्यूलस गिवन है एज ए पेज नंबर 238 पर, इट इज 36 into 10⁻⁹। ओके, और स्टील के लिए भी गिवन है एज ए, सॉरी ये तो शियर मॉड्यूलस है, सॉरी यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस जो है वो ऐसे ब्रास का नहीं दिया हमें कहीं पर, देन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ कॉपर। कॉपर ब्रास वैसे सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस फॉर द स्टील, यंग्स मॉड्यूलस फॉर द स्टील हमने आगे भी अभी यूज किया है, दैट इज 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस फॉर द ब्रास मटेरियल और ऐसे कॉपर मटेरियल ऑलमोस्ट सेम, तो इट इज 1.2 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब पूछा गया है हमें, तो जो भी लेंथ दे रखी है, कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर, दोनों की लेंथ में चेंज जो आएगा, डेल्टा एल फॉर द स्टील एंड डेल्टा एल फॉर द ब्रास पूछा है हमें। ओके, अब दोनों के लिए हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर सेम, दोनों का सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो जाएगा। ओके, देन डायमीटर D इज इक्वल टू क्या है, 0.25 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द रेडियस, इट इज D by 2, 0.25 divided by 2, it is 0.125 centimeter, then it is 0.125 10⁻⁻² मीटर। चलो अब एरिया सेम होगा तो एरिया यहां पर ही कर देते हैं, देन एरिया A is equal to pi r square, then what is the area, 3.14 0.125 into 10⁻⁻² होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर पहले इसका एरिया कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोथ वायर, देन 3.14 into 0.125 into 0.125
ओके, इट इज 0.049 और 0.6 से इसलिए 1 भी कर सकते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब दोनों का लेंथ हमें दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। ओके, अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करें तब देखो यहाँ पर अगर हम स्टील वायर के लिए स्टार्ट करें तो स्टील वायर के एंड पॉइंट पर 4 kg और इसके एंड पॉइंट पर 6 kg। तो ऑन दिस वायर देयर इज ए इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ बोथ द मासेस। इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, मतलब स्टील वायर के ऊपर हमारा जो मास हो जाएगा वो 10 kg हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रास के लिए कैलकुलेट करें तो ऊपर का मास तो उसमें कैलकुलेट होगा नहीं, जो नीचे होगा उसकी वजह से ही हमें ऐसे लोड लगेगा। ओके, जैसे हम सोचे कि हम हाथ में कोई भी ऐसी चीज पकड़े और उसके नीचे जितना भी इंक्रीज होता जाए उतना ऐसे हमारे हाथ पर फोर्स बढ़ता जाएगा। ओके, तो ऊपर की वजह से ब्रास में जो है वो ऊपर का मास का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, तो पहले अगर स्टील वायर के लिए सोचे तो लिखना है ऐसे कि 4 स्टील वायर उसमें जो मास बोलेंगे मास m इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे 10 kg, 6 + 4 10 kg। जी की वैल्यू तो जो भी ऐसे 9.8 यूज करेंगे, लेंथ दे रखी है, यंग्स मॉड्यूलस सब कुछ है, एरिया है तो उसका चेंज इन द लेंथ कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे यंग्स मॉड्यूलस यूजिंग y इज इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं हम mgl upon a delta l। okay, then make subject delta l। what is delta l? it is mgl upon y into a। ये वाला जो है वो ऐसे लिख दिया होगा तुम लोगों ने। चलो, तो अब क्या, तो फॉर स्टील वायर H is the length, delta L is equal to mass 10 G 9.8 और length for the steel wire is 1.5। ओके, एरिया कितना 0.0491 10⁻⁴ n Young's modulus। Then what is Young's modulus for the steel? 2 into 10⁻11। ओके, चलो करो कैलकुलेशन। ये तो 98 हो गया इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.0491 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 1496.94 10⁻⁴ में। तो देखो 11 - 47 ऊपर जाएगा तो -7 मीटर। द चेंज इन द लेंथ फॉर द स्टील वायर इज 1496.94 10⁻⁷। चलो, अब यहां पर एक एक पॉइंट डिस्प्लेस करते जाए तो -6, ओके, 5 4 3 मतलब 0.149 into 10⁻³ मीटर। ऐसा भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 0.15 और मिलीमीटर 10⁻³ मीटर इज मिलीमीटर। ओके, चलो ऐसा ही कर सकते हैं फॉर ब्रास वायर। सिमिलरली फॉर ब्रास वायर क्या है
व्हाट अबाउट डेल्टा एल? सेम फॉर्मूला mgl अपॉन ya, लेकिन यहां पर मास किसका आएगा? ब्रास के लिए ओनली द 6 into 9.8, उसकी लेंथ है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस 1.2 10⁻11 और एरिया तो सेम ही है 0.0491 10⁻⁻4, then it is 6 into 9.8 divided by 1.2 divided by 0.0491. Okay, it is 997.96 and 10⁻⁻7 ही होगा मीटर में। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 6, 5, 4 and 3, मतलब 0.0997 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये तो मिलीमीटर एंड 0.099 है, मतलब 0.1 बोल सकते हैं हम, क्योंकि 0.9 हो गया तो 1 हो जाएगा 0.1 and millimeter. Then change in the length for brass wire. देखो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस जो है वो गिवन नहीं है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में वो गिवन ही होगा, चिंता मत करो। यंग्स मॉड्यूलस विल बी गिवन टू यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस तुम्हें याद नहीं रखने हैं। यंग्स मॉड्यूलस और जो भी मटेरियल स्टील है या कॉपर है कि ब्रास है कि कोई भी मटेरियल होगा, कंक्रीट होगा, उसका यंग्स मॉड्यूलस दिया ही होगा। बॉर्न है, जो भी है, यंग्स मॉड्यूलस विल बी गिवन टू यू। ओके, तो चलो ऐसे वीडियो को करके लिख दो, ये आंसर कंप्लीट कर दो। ओके, चलो नंबर नेक्स्ट इज ए 9.6। क्या है 9.6 के अंदर? पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से, समझ लो उसको, क्या गिवन है हमें कंडीशन और उसमें करना क्या है। The 9.6, the edge of an aluminium cube is 10 centimeter long. The one face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. The mass of 100 kg is attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 gigapascal. देखो, the shear modulus is given as a 25 GPa. G means giga और Pa means pascal. Pascal nothing but Newton per meter square. It is Pascal, not Rascal. हाँ, Rascal नहीं, it is Pascal. तो 25 giga means 10⁻⁹। इन पास्कल की जगह पर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। देन व्हाट इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस? देखो यहाँ पर हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई भी एक क्यूब, ये जो फेस है वो ऐसे बॉल के साथ अटैच है और उसके अनदर एंड पॉइंट पर यहां पर हमें मास लगाना है। कितना? 100 kg का, है ना? 100 kg का लगाएंगे, ये फिक्स है। तो यहां पर ये जो है थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका नीचे फेस में। देन बस वही तो करना है हमें कि दैट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, मतलब कितना ये नीचे आएगा। तब यहां पर इसका जो भी ऐसे क्यूब, तो क्यूब की जो लेंथ है उसको हम हाइट के टर्म्स में ले सकते हैं, या फिर ये वाला दिस 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। ओके, तो एरिया भी मिल सकता है इसका। और शियर मॉड्यूलस, तो जो भी शियर मॉड्यूलस है उसको हम वैसे तो G से डिनोट करते हैं, हमारा सिंबल है G, एंड दैट इज 25 गीगा मींस 10⁻⁹ और इंस्टेड ऑफ पास्कल वी कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो 25 इंटू 10⁻⁹ और फाइंड करना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स हमें करना है। तो ये फॉर्मूला है, ये अगर हम यूज करें कि शियर मॉड्यूलस G इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनिंग, मतलब शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन ही है, शियर स्ट्रेस ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों में ऐसे शियर स्ट्रेस कर देना, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो होता है हमारे लिए F अपॉन A, लेकिन स्ट्रेन में हम क्या बोलते हैं, इट इज डेल्टा एक्स अपॉन एच। ये तो ऊपर आ जाएगा, बस डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट कर दो, दैट इज F। चलो F की जगह पर मैं mg कर सकता हूं और ये हो जाएगा g इंटू ए। मास कितना 9.8, हाइट 0.1 g, 25 इंटू 10⁻⁹ और इसका एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि h² मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.01। ओके, देन व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन? जस्ट कैलकुलेट इट, 100 into 9.8, that is 980 into 0.1 divided by 25 divided by 0.01, it is 392 into 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये कि it is 0.392 10⁻⁶ मीटर, and 0.39 means approximate 4 भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स approximate 0.4 और -6 में तुम लिख सकते हो माइक्रोमीटर, और नहीं लिखना है तो 0.4 इंटू 10⁻⁶ चलेगा। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर ऐसे वीडियो पोस्ट करके लिख दो। ओके, चलो नंबर 7 क्या है? नंबर 7 भाई क्वेश्चन है, वो तो मुझे भी पता है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो अंदर। नंबर 7, the 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel supported a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. इसका मतलब कि हमें ऐसे जो भी ऐसे कोई भी बिल्डिंग सोचो तो ऐसे 4 पिलर पर ही होती है, तो ऐसे हमें 4 पिलर दे रखे हैं, लेकिन इट इज होलो सिलिंड्रिकल पिलर जिसका इनर एंड आउटर रेडियस दे रखा है हमें, और उसके ऊपर जो है वो पूरा स्टील का ऐसा स्ट्रक्चर है, और कॉलम भी ऐसे कुछ बोलेंगे मेड अप ऑफ स्टील, हाँ ऑफ माइल्ड स्टील ऐसा बोल रखा है। सपोर्टेड ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास, उसके ऊपर कोई भी एक स्ट्रक्चर बोला हुआ है जिसका मास है 50,000 kg, तो उसका हम वेट कर सकते हैं। और उसमें भी लास्ट में बोला है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, मतलब वो चारों के ऊपर जो है वो ऐसे जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें तो फाइंड करना है कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, तो हमें पहले तो ईच कॉलम के ऊपर कितना वेट लगता है वो करेंगे। ओके, तब यहां पर पहले तो इनर एंड आउटर रेडियस के लिए लिख दे कि इनर रेडियस R1 लिखो, इट इज 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, आउटर रेडियस R2 is 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर होगा। ओके, अब इसका जो भी मास हमें दे रखा है, टोटल मास इज 50,000
1000 kg। तो टोटल वेट कर सकते हैं, टोटल वेट बोलो, फोर्स बोलो, F सिंबलाइज करेंगे, दैट इज mg, मतलब 50,000 इंटू 9.8। चलो कितना आ रहा है इसका टोटल वेट? चलो यहां पर पहले W से, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 9.8, इट इज 49 and 4 times 0 न्यूटन। इट इज अ टोटल वेट। अब वो जो वेट है वो किसके ऊपर है? 4 पिलर्स के ऊपर है, 4 कॉलम के ऊपर है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई we have to calculate the weight otherwise force on each column। यहां पर बोल सकते हैं कि given weight is uniformly distributed on each column, है ना? स्पेलिंग लिख लो कॉलम का क्या है, COLUM, each column। so weight otherwise force on each column क्या होगा, जिसको मैं अब अगर F से लिख दूं, then it is W/4। समझ में आ रहा है? तो इसको तुम अब 4 से डिवाइड करो, 49 divided by 4, it is 122,500 न्यूटन ऑन ईच। क्यों ऐसा हमने किया? हमें फाइंड करना है कंप्रेशनल स्ट्रेंथ ऑफ ईच कॉलम। ऊपर के जो मास की वजह से कॉलम में जो भी थोड़ा बहुत ऐसे कंप्रेस होगा वो कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टील का यंग्स मॉड्यूलस तो हमें मालूम ही है। चलो अब इनर एंड आउटर रेडियस हमें गिवन है। चलो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा सोच ले, ये ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इनर एंड आउटर रेडियस हमने दे रखा है और होलो है, मतलब ये जो पोर्शन है वो खाली है, अंदर का मटेरियल तो इतने पोर्शन में ही है, 3 डायमेंशन में आया समझ में, मटेरियल इतने पोर्शन में ही है, अंदर पूरा खाली है। तो इसका एरिया हमें करना पड़ेगा, तो ये एरिया और ये एरिया, तो पूरे एरिया में से इसका एरिया हम माइनस कर दे तो इस मटेरियल का एरिया मिल सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया A is equal to pi r2 square minus pi r1 square, क्योंकि आउटर में से इनर का माइनस कर दो, पाई कॉमन ले लो, r2 square minus r1 square, it is 3.14, r2 0.6 का स्क्वायर 0.36 माइनस r1 0.3 का स्क्वायर 0.09। चलो इसकी पहले कैलकुलेशन कर दो, तो 0.36 माइनस 0.09 इंटू 3.14, इट इज 0.8478 मीटर स्क्वायर। चलो फाइंड करना है हमें कंप्रेशनल स्ट्रेन फाइंड करना है, तो यंग्स मॉड्यूलस यूज करेंगे, यूजिंग y is equal to stress upon strain, then compressive strain is equal to stress upon Young's modulus। ओके, स्ट्रेस क्या होता है? F upon A into y, then compressive strain is equal to force, तो फोर्स ऑन ईच हमें मिल गया 122,500
divided by area, it is 0.8478 into यंग्स मॉड्यूलस। किसका यंग्स मॉड्यूलस? स्टील का। तो स्टील का यूज करते हैं हम 2 × 10⁻11 है ना। चलो करो कैलकुलेशन। इट इज 122,500 divided by 0.8478 divided by 2. The answer is 72245 10⁻11 sorry 0.81 10⁻11 स्ट्रेन है, इसीलिए इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। चलो इसमें अगर हम पॉइंट डिस्प्लेस करें तो 10 9 8 7 6 मतलब 0.722 10⁻6 और ईच कॉलम। अगर हम इसमें भी करना है कि टोटल स्ट्रेन 4 कॉलम, therefore ये जो वैल्यू है इंटू 4 कर देंगे। तो 0.722 इंटू 4 इट इज 2.88 या 2.8 लिखो तो भी चले 10⁻6 और टोटल करना है तो ये ईच के ऊपर तो 0.72 होगा ही। आया समझ में? तो यहां तक कर दो अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइम इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।